The biggest problem I had was that people realized that there are two big dabbas for the woman anchor. या तो वो morning show करेगी, which is going to be lively, bubbly, सुबह hello, कैसे हैं आप, चटपटी बातें, etc. On the other hand, we had the current affairs anchors who were meant to be angry and serious and hard-hitting. जो सरमायादार है, जो शख्स बिजनेस करता है, उसको शक की निगाह से दे. उसको आप आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तुम ना तुम्हारा सरमाया यहाँ पे महफूज है. जो हमारी आबादी है, अगर हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, इस साइज 400 मिलियन by 2030. Exactly. इस साइज का मुल्क डिफॉल्ट नहीं होता. 80% of India has a bank account. We could have done that and we haven't missed the boat because technology जो पहले कहते थे ना कि जी मुल्कों की कौमों की ज़िंदगियों में 100 साल कुछ नहीं होते, अब उस 100 साल को आप छोटा करके 7 साल में 8 साल में विद इन 1 जनरेशन हम अपने हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, मुख्तलिफ मसाइल हल कर सकते हैं. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today, Sidra Iqbal. She's a TV personality. She's a lot of different things. We discussed she's an MBA. In her youth, she won lots of awards representing Pakistan. She's, what did you say, an avid policy influencer, yes? This is a great place to start because what does that mean? Okay, not an avid policy influencer. What I meant was I'm an avid reader. And my subjects of interest, of course, are policy matters, politics, and economics. Okay. I've been in the domain, like when you were referring to my public speaking, student life, expeditions. We used to focus more and more about, okay, what is this world like and how can young people influence to make it a better world? So there was a lot of influence on an emphasis on youth-led leadership. Us zamane mein, they used to call it the Millennium Development Goals. Today, we call them the Sustainable Development Goals, the SDGs. So that's where I developed an interest about how governments and big organizations can actually impact what is important to a common man, whereas their livelihoods are involved, their education, their healthcare. So even with journalism, शायद मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा काम ये है कि we highlight these issues and we try to connect the dots. कि हर दफ़ा जो schemes और बड़े बड़े procedures and policy चीज़ें announce होती हैं, are they bearing fruit and are they really making an effective impact? So I see my role there. And how did that sort of role come about and what influence do you think that it has? I mean, who are you looking to influence for starters? पहले तो अगर इससे शुरू करें ना कि मेरे television career में the biggest problem I had was कि people realized that there are two big dabbas for the woman anchor. या तो वो morning show करेगी, which is going to be lively, bubbly, सुबह hello, कैसे हैं आप, चटपटी बातें, etc. On the other hand, we had the current affairs anchors who were meant to be angry and serious and hard-hitting. ऐसा सवाल करे कि लाजवाब कर दे. So there was no room for cerebral conversation, investigation, जिसमें आप अपने guest को insult नहीं करना चाहते, उसको demean नहीं करना चाहते, but आप actual inquiry करना चाहते हैं. And you want to, and you also think कि आपकी audience idiot नहीं है, उसकी intelligence को आप doubt नहीं करते और उनके लिए कुछ meaningful of value create करना चाहते हैं. So in my 10-12 years of a television career, the struggle was कि how do you execute that or how do you bring that to television screens? Now, alhamdulillah, in the 5th year of running and hosting and producing my own morning show, I've been able to carve that space. So when I say कि these things are important to me, मुझे हर दफ़ा लोग ये कहते थे, pushback आता था शायद कि ये subject लोगों को नहीं पसंद, ये कोई नहीं देखना चाहता. But we've created our mark, we've brought human stories, we've brought policy stories, and I believe we're breaking a lot of stereotypes. Like मेरे show में मुझे एक segment रखना था जिसमें मैं achievers को highlight करना चाहती थी. Coming from humble backgrounds, if they've made a mark in sports, in community service, or done something outstanding. Like aaj subah, we had Dr. Alia on the show, who's doing a simple thing. She's a principal at Mao College in Lahore, and she has chosen to ride a bike every day to the college. Sustainable practice, and at the same time breaking the stereotypes के हमें नहीं आदत यार ख़वातीन को साइकिल पे कहीं पे भी जाते हुए देखने की. So things like that need encouragement, and I feel that drop by drop, it will have an impact into changing people for the better क्योंकि हमारे social fabric के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा. और आपको लगता है कि जब से आप इस इंडस्ट्री में आई हैं, how much has it evolved? मतलब अब क्या लोग social fabric को देखते हैं? Are they
is journalism changing? Is the television are the TV networks changing? या अभी भी हम, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ आपका शो इज़ यूनिक बट देयर इज़न्ट इनफ ऑफ दैट राइट. अभी भी अगर आप मेजॉरिटी देखें तो इट्स अ लॉट ऑफ, जिस तरह आपने कहा सुबह को एक मॉर्निंग शो विद बबली होस्ट और शाम को किसी पॉलिटिशियन को बुला के या उसको जलील करना या एक टर्न बस लड़ाई चल रही होती है. आपको ऐसा लगता है ना कि वो जितने आपके और मेरे दुख हैं कि हमारी रोड क्यों नहीं बनी हुई या महंगाई क्यों है या पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है कि जो एंकर होता है वो आपका हीरो है और पॉलिटिशियन विलन है और आपने उसके एक पंचिंग बैग सिचुएशन क्रिएट करनी है. पर पिकिंग फ्रॉम व्हाट यू सेड, आई एम अ सेकंड जनरेशन टीवी बेबी. My father was the original TV person who started with Pakistan Television. He was with it for 35 years. So growing up, TV, camera, studios was not new to me. But I never intended to come in TV. So ये भी एक fate की बात होती है. I think destiny थी तो I'm here. So how did you end up in TV? Yeah, it was purely by accident. I mean, I had completed my MBA. I had joined Interflow and my love was strategy and advertising. And lo and behold, around that time was when TV1 was launched, which is Interflow ka channel. And Tahir Saab was again a family friend. And Tahir uncle said, why don't you come into designing program? PD I enjoyed, product development. और आपकी तरह ही हुआ जिस तरह आप ये पॉडकास्ट डिज़ाइन कर रहे थे एंड यू couldn't find the right host. I was designing a morning show. I couldn't find the right host and Tahir uncle thought ke you're the best person to host it. And the rest is history. But what you were referring to, so there is a certain level of frustration my dad's generation sees क्योंकि उन्होंने टीवी को एक बहुत एक क्राफ्ट एक सेक्रेट चीज़ की तरह लेके वो लोग चले थे कि यार उसकी ट्रेनिंग भी होनी है और ये लफ्ज़ आप नहीं बोल सकते, इस पोस्चर में आप नहीं बैठ सकते, लाइटिंग एक साइंस है. आई थिंक विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जस्ट द वे वी आर, वी बिकम फार रिलैक्स्ड. आई मीन थिंग्स वी कुड नॉट से अर्लियर ऑन टीवी, वी कुड नाउ से इट ऑन टीवी, एंड व्हाट वी कांट से ऑन टीवी वी कैन से इन अ पॉडकास्ट. तो वो तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है. And it's not frustrating. To me, it's very exciting. मुझे ऐसा लगता है कि the moment you start cribbing and whinging कि यार पहले ऐसा होता था और अब ऐसा नहीं होता, that's when you are stopping your own growth. So I see it as a creative challenge. And what about, you know, in this industry, एक और भी बहुत ज़्यादा, खैर इस इंडस्ट्री में क्या, पाकिस्तान में every industry में unfortunately, there is also the component of being a woman in this industry, right? And that's different to career opportunities wise, but there's all sorts of other things you have to deal with. Is that environment getting better in general? Okay, the answer would be a mixed bag, yes and no. I think television and media itself has created a lot of room for women. यानी जो आप पहले नहीं सोच सकते थे, the implementation, the kind of stories you wanted, the kind of screen presence you wanted, वो अब आपको मिलने लगा है. बट पूरी दुनिया की तरह यहाँ पे स्ट्रगल्स हैं. आई मीन एक सर्टन लेवल के बाद मुझे लगता है आज भी आप बात करें किसी भी प्राइवेट चैनल की डायरेक्टर न्यूज़ एक खातून नहीं है. सो वाइल वुमेन आर रिपोर्टिंग, वाइल वुमेन आर एंकर पर्सन्स, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एट द डेस्क, दे आर नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. और तभी होता है कि मैंने देखा इट वाज सो रिडिकुलस कि आई थिंक वुमेन इन अफगानिस्तान वर प्रोटेस्टिंग एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट हाई स्कूल और अ डिग्री प्रोग्राम ऑफ सब नेचर, और वो अखबार में बाकायदा हुआ और उसके नीचे सबटाइटल में लिखा हुआ था अ ब्यूटिफुल प्रोटेस्ट जस्ट बिकॉज वुमेन वर देयर. सो इस तरह की जो जेंडर इनसेंसिटिविटी है वो वही आती है बिकॉज वुमेन आर नॉट देयर एट द एडिटोरियल लेवल्स. मुझे लगता है कि दैट नीड्स टू चेंज, बट एट द सेम टाइम tremendous opportunity has been created already. And what about your journey personally? Matlab, what's the, if I was to ask you like the, not the end goal, but what's the vision for, you know, Sidra herself? Where do you want to end up, you know, at the end of your career where you'd be like, yeah, okay, I'm happy with where I am now? Honestly, मुझे लगता है कि long-term goals are a thing of the past. I am more interested in learning, unlearning and relearning. And I think every day is presenting us with that opportunity. I would like to believe that I'm an idealist. So my view of life has not gotten jaded. बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको ये struggle और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो cyclical हमारे यहाँ nature है कि there'll be a little pessimism and then there'll be a bout of optimism and then you're down in the dumps again. उनको इस roller coaster की वजह से they start feeling कि यार there's not much to go for. But to me, I think Pakistan is what has given us identity, multiple opportunities. I see a very strong role for myself in the coming decade or so, which I believe is my prime,
in influencing things for the better. Pakistan has given me this amazing oyster जहाँ पे मुझे लगता है कि because of media and my own skill set and the journey so far, I've interacted with everyone from government to the international organization to the corporate structure to the masses at large. Now it's sort of coming together into taking it to the next level. I don't know what that is right now, but that's how I see it. But you're excited for it. I am. And it's good to see some positivity as well. I mean, it's very rare हमारे show पे unfortunately. पाकिस्तान हमने शुरू भी इस साल में किया है ना जहाँ नेगेटिविटी बहुत हाई है. अच्छा, ये मुझे लगता है पर्सपेक्टिव है. पता है, मुझे सारी ज़िंदगी ये लगता है शायान कि हम जो भी फैक्ट्स की बेसिस पे अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, इट्स लाइक अ होलोग्राम कार्ड. होलोग्राम को अगर आप देखें, वो एक स्माइल होता है, उसको ज़रा सा टिल्ट करो तो एक फ्राउन बन जाती है, जो भी उसके दो रुख है ना. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर. The same thing that may be pulling you down is an opportunity for you to go forward. Very recently, because I commit myself to learning, I completed this program called Hardcore Leadership. और उसके अंदर वो एक चीज़ आपको सिखाते हैं कि दो चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे. Number one, they say things are possible 100% time. 100% 100% of the time. And जब आप कहना यार वक्त सही नहीं है, हालात सही नहीं है, अगर तुम इंतज़ार कर रहे होते इस पॉडकास्ट को शुरू करने का कोई भी सही वक्त नहीं था. So you start when you start, right? And perfectionists never get any work done. क्योंकि वो हमेशा एक बेहतरीन और मिसाली चीज़ की तलाश में रहते हैं, तो उसकी वजह से वो कभी कुछ आगे कर नहीं पाते. The second thing that this program taught us was कि you have two hearts. आपके दो तरह के दिल हैं. Number one is a boxed heart, जिसको आप डब्बे में बंद करके साइड पे रख दें और आप कहें कि देखो ये कितना प्रोटेक्टेड है, ना ये टूटेगा, ना इसको किसी काम से लगाना, ना किसी गोल के इसको पीछे भागने देना, because now you're protected. And the second kind of a heart is a bruised heart. जिसको बड़ी चोटें लगी हैं, जिसको बड़ी मारें लगी हैं, लेकिन वो हर दफ़ा उठ के खड़ा हो जाता है. And that's the way you need to live. Because while a boxed heart may protect you from pain, it's the bruises and the journey and the failures that is going to cause you to, go forward. And that's the sort of self-belief that you need as well, right? मतलब to know that I can pick myself up as half the battle. ना? Every time अब देखो दो तरह है ना, लोग इस बात पे क्रिप करते हैं मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, but यार give yourself credit after everything that went wrong. You stood up, you survived, maybe you even thrived. So that ought to be celebrated. And in some ways, I sometimes tell people कि Pakistan is the same, right? मतलब अगर हम whatever it is खड़े हुए तो हैं ना, and there is, when people are like, oh, this is the time to leave Pakistan, I sometimes wonder, if we're at rock bottom, theoretically, that means most likely there's only way up. There's only upward trajectory जो follow करनी है. तो अगर follow करना ही इसने है, why would you leave when, I mean, in all markets आप जाती हैं उस point पे जब आपको पता है एक वेव ऑफ ग्रोथ आनी है. अगर हम अपनी लोएस्ट पॉइंट पे हैं थियोरेटिकली, तो फिर तो या हम ख़त्म हो जाएंगे, विच इज़ अनलाइकली completely as a nation. I've never seen that. I don't see that as a possibility. लेकिन we'll go up, and if we go up, that means there'll be a, जिस आपने ये पॉडकास्ट की बात की है, किसी भी चीज़ की बात की, the media's landscape of Pakistan is nascent. It hasn't even really grown yet. We haven't even scratched the surface. It would be right to say that. Yeah. And also the fact कि यार देखें, मुझे ऐसा लगता है कि when people want to leave, it's an escapist mindset, number one. And I don't discount it. By escape, I mean, मैं ये नहीं कह रही कि यार आपको नहीं जाना चाहिए. सब लोगों के लिए बड़ी, हम ऑफलाइन भी जब बात कर रहे थे, हमने कहा बड़ा रियल है. कुछ लोगों की ज़िंदगियों में वाकई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आता है. और आज इंसान, जितने लोग पाकिस्तान में, वो अपने आप से और हर एक से ये सवाल कर रहे हैं कि यार कराची की अगर मैं बात करूं, आपने पानी नहीं आता था, चले हमने टैंकर डलवाने शुरू कर दिए. सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों ने गार्ड्स खुद ले लिए. बिजली नहीं थी तो आपने जनरेटर खुद लगा लिया. तो ऑब्वियसली दैट्स अ पेन पॉइंट. पीपल आर सेइंग कि यू आर, व्हाट डू वी से, और कौन कहता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बेहतर हो रही है. हमें तो हर दिन मुश्किल से मुश्किल लग रहा है. एंड दैट्स अ वेरी रियल पेन पॉइंट. एंड पीपल आर फोर्स्ड टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि यार इतनी मेहनत अगर मैं यहाँ करूँ, दूसरे मुल्क में करूँ, तो 20 साल के बाद मुझे वहाँ पे एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी अच्छी मिलती है, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी रियल रीज़न टू थिंक अबाउट. जो मैं देख के आई हूँ, अभी आई वॉज इन कैनेडा फॉर अ मंथ.
pure talent from Pakistan, very, very talented people who our country has invested a lot of resources. देखो अच्छा है बुरा है, आपकी ज़िंदगी आपकी सराउंडिंग्स में से बेहतरीन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आप एक बैच ऑफ डॉक्टर्स निकालते हैं. We did a survey for one of the leading medical colleges in Pakistan, जिसने मेरे ख्याल में 1990 के अवाइल में churn out करना शुरू किए graduates. You would not believe it, 92% of their graduates are not practicing in Pakistan. And then I am taking back to a conversation I had with one of the union leaders in Canada. उसने कहा देखें जी, एक बड़ा मुल्क होता है जिसके पास वसाइल है ना, हमें तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है. कोविड आया, हमारे पास पैसे थे, हमने पूरी दुनिया से मास्क ले लिया. आपके पास शॉर्टेज हो गई. हमारे पास पैसे थे, हमने कोविड की वैक्सीन ले ली. मुश्किल किसको हुई? आपको हुई. हमें आज भी मेडिकल केयर के नर्सेस की, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो द स्मॉल कंट्रीज़ विल शो देम द ग्रीनर पास्चर्स एंड पीपल विल मूव हेयर. ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए आपके पॉलिसी मेकर्स के लिए कि व्हेन दिस क्रीम ऑफ पीपल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन, ह्यूमन रिसोर्स को ग्रूम करने में 20-25 साल लगते हैं, अगर ये सब के सब चले जाएंगे, वेयर इज़ द रोबस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द पॉलिसी मेकर्स टू कीप दीज पीपल है, टू इंसेंटिवाइज दैम, टू गिव देम सम काइंड ऑफ अ लीवे. आप ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, जो सरमायादार है, जो शख्स बिजनेस करता है, उसको शक की निगाह से देखते हैं. उसको आप आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तुम ना तुम्हारा सरमाया यहाँ पे महफूज है. If you keep driving these people out, then who's going to lead the growth? So in that way, it's a very real problem. But on the other hand, जो हमारी आबादी है, अगर हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, up to 400 million by 2030, yeah. Exactly. इस साइज़ का मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता. हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. सो वही आपकी वाली बात की पोटेंशियल बहुत है. ये वेव है. मुझे याद है अच्छी तरह 2001 डॉक्टर अताउर रहमान वाज द चेयरमैन ऑफ HEC. उनसे भी लोग यही सवाल करते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है. एंड ही वुड से दिस इज़ नॉट ब्रेन ड्रेन, दिस इज़ एक्चुअली ब्रेन गेन, बिकॉज ये लोग बाहर जाएंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं इनको ग्रूम करने के, दे विल बिकम वर्ल्ड क्लास. एंड ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट पीपल विल कम बैक. और मैं आपकी बात पे अगर ऐड करूँ, someone mentioned something on this podcast once which I thought was really interesting, कि हमें ये लगता है कि ब्रेन ड्रेन सब चले जाएंगे. जब वो जाते हैं, a lot of them, some of them come back, a lot of them don't come back. वहाँ पे वो जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, they learn जो हम यहाँ पे नहीं सिखा पाते, फिर वो वहाँ से भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंस. अगर आई थिंक वो बता रहे थे इस साल का था या पिछले साल का था, आई डोंट नो हैव द एग्जैक्ट फिगर, बट द फॉरेन रेमिटेंस वाज अप देयर विद द एक्सपोर्ट्स दैट वी वर डूइंग, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तानीज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पैसा भेजते हैं. एंड देन ही वाज कंपेयरिंग दैट टू इंडिया आज से 15-20 साल पहले, जहाँ एक वेव ऑफ इंडियंस वेंट अब्रॉड, जो आपके NRIs जिसे कहते हैं, एंड दे वर दी फैड ऑफ द टाइम कि हर बंदा वांटेड टू लीव इंडिया. लेकिन वो फिर पैसे वापस भेजते थे, वो अपनी फैमिलीज फॉर एग्जांपल बाहर जब सेटल कराते थे, वहाँ से वो फॉरेन रेमिटेंस भी भेज रहे होते थे. उसके बाद क्या होता था, लॉट ऑफ देम वुड कम इन रिटायर इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन इंडिया एट द टाइम. सो ब्रेन ड्रेन इज इन अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल. पहली बात तो ये है कि ब्रेन ड्रेन इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग. वो उससे हो क्या रहा है कि आपकी जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो एक चीज़ सीख रहे हैं जो पहली बात तो हम अज्यूम करें ना कि यहाँ पे सीख सकते हैं. देयर इज़ नो मैच. आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडिंग मेडिसिन, द वर्क बीइंग डन इन द यूनाइटेड स्टेट्स in terms of research, in terms of cutting edge technology, यहाँ पे तो नहीं है ना. This is fact. Like we went to the University Hospital Foundation in Alberta. That is where we had 2 Nobel laureates medicine में, और एक साहब जिनसे हमारी मुलाकात हुई, he was the one who discovered hepatitis B. So you're absolutely right, the opportunity is there. But going back to your earlier point, I don't really buy the remittances model. Like as a student of economics, मुझे लगता है कि it's a great in stream, but it's a very unreliable stream. देखो, एक शख्स अगर आज आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं, and your parents have decided to stay back in Pakistan, so you're sending remittances for them, or you have the faith कि यार मैं आज से 20 साल के बाद अगर रिटायर होऊंगा, 15 साल के बाद, तो मेरा घर एक होना चाहिए, मैं वापस पाकिस्तान आना चाहूँगा. अब ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है. द मोमेंट योर पेरेंट्स, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, बट द पीपल हु हैव गॉन अब्रॉड, उनके पेरेंट्स अगर इंतकाल कर जाते हैं, दैट कनेक्शन विद पाकिस्तान जस्ट कट्स ऑफ. एंड इफ़ दे डिसाइड टू हैव चिल्ड्रन अब्रॉड एंड दे सेटल अब्रॉड, और अब जिस तरह के आप देखें, आप UK चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, दे हैव रीडिफाइंड their national
identities to be more multicultural. बिल्कुल. I might say something very controversial है. एक सिंपल सी बात देखो कि पिछले 40 साल से हम 5 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान में एज रेफ्यूजीज़ रखे हुए. पाकिस्तान की कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई है जिसने इस बात को निगेट किया हो, इसको अपोज किया हो या कहा हो कि इनको वापस भेजें. लेकिन हैंड ऑन हार्ट क्या हम कह सकते हैं कि दीज अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैव बिन नेचुरलाइज्ड? इस रिसोर्स जिसको हम, जो हमारे वसाइल के साथ हमारे मोहल्लों में रहते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स, हमारे हेल्थ सिस्टम्स, हमारी तमाम सिस्टम्स को, और एंटरप्राइजिंग भी हैं बाय द वे, दे वेरी हार्ड वर्किंग, दे हैव सेट अप देयर ओन बिजनेसेस, वी हैवंट इवन एक्सेप्टेड देम. तो आपके पास एक अटपटी सी सिनेरियो है जहां आप हमेशा अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, किसी को बुरा समझते रहते हैं. पाकिस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ था, हमारी 25% हमारी पॉपुलेशन माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे कंप्राइज करती थी. आज 75 साल की एग्जिस्टेंस के बाद दैट नंबर हैज़ कम डाउन टू 4%. We have driven our diversity away, whereas these big countries who are now attracting immigrants, skilled immigrants, आपको एक multicultural एहसास दे रही हैं. हम ये बात करते हैं कि रमज़ान होता है मिसिसागा में और UK में और बड़े बड़े चर्चेज़ में ऑस्ट्रेलिया में, वो खोल देते हैं कि जी आप अपनी तरावियाँ पढ़ें, आप अपनी नमाज़ पढ़ें. Have we ever set an example like that? Or are we even open to doing something of that nature? हम इस बात पे खुश होते हैं कि जर्मनी की डिक्शनरी में इंशाल्लाह माशाल्लाह ऑफिशियल वर्ड्स के तौर पर शामिल कर दिए गए हैं. दे आर बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मुस्लिम माइनॉरिटी दैट दे हैव. ऑन द अदर हैंड आपके मुल्क में इस बात पे डिबेट होती है कि आप मसीही बिरादरी को मेरी क्रिसमस कह सकते हैं या नहीं. तो आई मीन वी आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, और हमें अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है. एंड देखिए, जहाँ तक आपका पॉइंट है, व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज़, एथनिक और रिलीजियस, पाकिस्तान, current Pakistan is not and I have hope. Dekhein, there is an alpha bulge about to happen, Gen Alpha ke Gen Z and just lots of young people, so you know they grew up with the internet, maybe they're more liberal, ho sakta hai. I can't say ke hoga, lekin in the Pakistan I grew up in, dekhein, it's not, if you could leave, if you're a minority, you would leave because frankly there is no integration. आप अफगानियों की बात कर रही हैं, अफगानी तो मुसलमान हैं, हम उनकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम किसी की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. वी आर वेरी क्लोज्ड ऑफ एज अ सोसाइटी. जहाँ तक उनकी sort of but this has been regressive by the way. अगर हम 1970s की बात करें, the Pakistan my parents grew up in, उस वक्त कराची में सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हुआ करती थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अफ्रीका, टर्की, सेंट्रल एशिया स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे. दैट वाज सीन टू बी दिस हब ऑफ एक्सीलेंस. सो दिस इज़ नॉट दैट कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद थी. वी हैव गॉन बैकवर्ड्स एंड कैन इट बी करेक्टेड? आई एम होपफुल दैट इट कैन बी. इसकी बड़ी वजह यह है कि मुझे लगता है, जैसे इंडिया की अगर बात कर रहे थे आप, इंडिया आज से 2013 या 14 में उन्होंने आधार कार्ड का अपना इनिशिएटिव लिया. आज 6 साल 8 साल उस प्रोग्राम को चलाने के बाद 80% ऑफ इंडिया हैज़ अ बैंक अकाउंट. वी कुड हैव डन दैट एंड वी हैवंट मिस्ड द बोट, बिकॉज टेक्नोलॉजी, जो पहले कहते थे ना कि जी मुल्कों की, कौमों की ज़िंदगियों में 100 साल कुछ नहीं होते, अब उस 100 साल को आप छोटा करके 7 साल में, 8 साल में, विद इन 1 जनरेशन हम अपने हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, मुख्तलिफ मसाइल हल कर सकते हैं. ऑल वी नीड इज़ परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, जो कि अनफॉर्चुनेटली आके नहीं देती. इसमें मैं आपसे एग्री भी करूँगा और sort of slightly disagree भी करूँगा. एग्री मैं इस चीज़ पे करता हूँ कि देखें, जो 1970s वाला पाकिस्तान था, जो मेरे वालिद साहब का था या आपके वालिद साहब का था, sounds a whole lot more liberal and interesting than the Pakistan I grew up in. ठीक है, उसमें there is a certain element of Talibanization जो इस रीजन में हो रही थी, certain issues, destabilizing factors from other places, our own problems, madrasa culture, lots of things. ठीक है, तो वो वाला element I feel like will die down. Everybody hates being stopped at airports for being Muslim. We've almost we've made it this horrible situation because of lots of factors within the economy. That being said, there is a second part जो मुझे लगता है, जो अगर आप इंडिया को भी देखें और हमें भी देखें और हिस्ट्री को देखें, हमारा एक कास्ट सिस्टम, एक कल्चरल है एक इशू. As Pakistanis, as Indians, as anyone from the subcontinent, South Asia, we have a problem, and that problem is that we are very cliquey, and this is why tribal, right? We are. इसमें, so for example, इसका मैं अगर दूसरा version देखता हूँ, so the MENA region has a lot of
financial, economic and crazy growth, but they also have that tribal mentality which they've now been able to find systems which work with them. मतलब मुझे नहीं लगता कि we can be like North America. I don't think we can be like Europe in terms of very open and क्योंकि हमारी sorry to interrupt you there, लेकिन मुझे लगता है कि we shouldn't even aspire to be that. देखें, the other wave अभी जो हम recently देख रहे हैं, Canada is going through a massive exercise of truth and reconciliation. देखें, एक चीज़ जिसमें हमें एहसास होना चाहिए कि in Pakistan we've never had state-led terrorism. ये जिस किस्म की हम एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड का पूरी दुनिया में मिसालें देखते हैं, ऐसा पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी नहीं किया कि एक्स फैक्टर को, ठीक है, विद इन द सोसाइटी वी हैव फॉल्ट लाइन्स, वी हैव स्क्रिमिशेस एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव बिन प्रे टू अ लॉट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, अ लॉट ऑफ रेडिकलाइजेशन, बिकॉज राइट नाउ वी हैव नाउ एंटर्ड इनटू द पोस्ट टेररिज्म वर्ल्ड और सो वी आर मेड टू बिलीव. लेकिन जो हम वहाँ पे देखे आए, लाइक अगर आप नॉर्थ अमेरिका की सिर्फ बात करें, 11 मिलियन पीपल, 110 मिलियन पीपल, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आपने सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड में क्लीन अप किया था, द नेटिव अमेरिकन्स को, एंड टुडे दे आर वंडरिंग व्हाट हैपेंड एंड व्हाई डिड इट हैपन. So, I mean, that kind of a past we don't have. The entire Europe, the entire North American prosperity is built on the backs of that. हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री में उस तरह के डार्क चैप्टर्स नहीं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि विद दैट नॉलेज हाउ आर वी मूविंग फॉरवर्ड. हम जो आज कर रहे हैं, इज इट गोइंग टू बिकम दैट डार्क चैप्टर? आर वी रेडी टू स्पीक द ट्रूथ एंड रिकंसाइल? क्योंकि आप अक्सर देखें ना, जहाँ जहाँ ज्यादती भी हुई है, देयर आर चैप्टर्स विच आर हिस्ट्री बुक्स आर क्वाइट अबाउट. हमने उसको एलिमिनेट कर दिया अपनी मेमोरी से, हम बात ही नहीं करते उसके बारे में. हुआ ही नहीं था या हुआ होगा पता नहीं सानू की. सो व्हाट वी नीड टू डू इज learn from it and implement something. That's where I stand. बिल्कुल, so I कहलें ignorant था, जो भी था, पाक स्टडीज़ तो पढ़ी हुई थी, लेकिन I moved to England and when I moved to England तो हुआ क्या कि I met some Bengali people and some Afghani people and they were very they hated us, right? And I was like, यार तुम लोगों को हमसे क्या मसला, हमने क्या किया, right? and then they started telling me stuff and I was like, नहीं, बकवास करते हैं. Then I started realizing कि we ignore such a long history of, and this is not just true to West or East Pakistan or we've wronged ethnic minorities, other people. और जो आपने सॉरी वाली बात की है ना, just saying sorry, right? We had Pervez Woodboy, he's a nuclear physicist on the podcast, and there's a little clip जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं about the wrong we did to Bengalis, right? And apologizes. बस इतनी सी क्लिप थी यार. मैं नीचे उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था and people from Bangladesh are like, this, thank you, finally someone has apologized. This is a nuclear physicist not related to, I mean, this is not the government apologizing. This is just a random guy on a random podcast saying sorry, right? And that was having an impact on people's lives. मुझे कभी कभार लगता है जो आपने बात की ना, truth and reconciliation, half our battle is this. आप मान लो यार, हो जाता है गलतियाँ from all sides of the border or all sides of life में हो जाती हैं, और आप ये बातें करना शुरू करें at a government level, at all sorts of levels where you say यार ये हो. But there is a big part of me that wants to talk about that. मुझे ऐसा लगता है शायान कि yes, there are chapters of every country, every society's history जो कि थोड़े से shady हैं और जिस पे स्पॉटलाइट डालने की और चीज़ों को इन रियलिटी देखने की ज़रूरत है. एंड बाय रियलिटी लोगों को लगता है कि यार काउंटर आर्ग्यूमेंट, दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं. तस्वीर का दूसरा रुख हमेशा, अगेन, आप इतना भी ना टिल्ट कर जाएं कि आपको दूसरा रुख ही वाहिद हकीकत लगने लगे. ये भी मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखें, इस वक्त हम एक पॉलिटिकल मेल्टडाउन से गुजर रहे हैं. इकोनॉमिकली हम बड़े बदहाल हैं. माशरती तौर पे हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारी डायरेक्शन क्या है. बट दैट डजंट मीन दैट वी आर बैड पीपल एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डन इज रॉन्ग. यानी ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि हम जिस कमज़ोरी के मरहले से गुजर रहे हैं, वी आर सो वीक राइट नाउ कि ऑल आर एनिमीज़ आर टेकिंग पॉट शॉट्स एट यू एंड दे आर पंचिंग होल्स इन योर लिस्ट, राइट? तो जब आप कमज़ोर होते हैं, आपका नैरेटिव भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इस वक्त आप दुनिया के हर मेजर मीडिया
की अगर बात कर लें, फेक न्यूज़ और नैरेटिव को और प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तो नहीं है। साल पहले तक जब न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टेलीविज़न स्क्रीन्स रूल करती थी, आपका वर्जन और आपका इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको ये जानकर है, तो आप अभी थोड़ी देर पहले NRIs की बात कर रहे थे, दुनिया की हर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की चेयर्स में, दुनिया की हर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग के पोजीशन पे आपको you'll see people who carry that contempt for Pakistan. So they will present their view. मुझे ये लगता है कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये भी है कि चलें हम सच को तो छोड़ें, अभी हम अपनी कहानी को भी आगे नहीं बढ़ा पाते. Like look at it in terms of Bollywood and through Hollywood, they have these powerful means of storytelling. इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है? They are rewriting their entire history. वो सिर्फ 200 साल के colonial rule की बात नहीं करते. उन्होंने मुगल सारे मुस्लिम बादशाहों को और सल्तनत को, कॉन्करर्स को भी उसमें डाल दिया. They are rewriting history by telling us कि जी खिलजी and Tipu Sultan were actually bad people. Their prerogative, ठीक है. लेकिन likewise don't make Pakistan a rogue state. We are not a rogue state. जैसे मैं जब भी इंडियन से बात करती थी, आज से नहीं, जब भी हम डिबेट किया करते थे, and they would turn around and say, oh, Pakistan was created at the back of India. आपने मुल्क तोड़वा दिया, आपने partition किया. भाई, first, let's get your facts right. India, the way the country of India never existed in history. It was a compilation of various territories, various states and sultanate जो साथ रहती थी. Creation of Pakistan is also the creation of India, because India was like a subcontinent region. जैसे आप कहते हैं ना, आप यूरोप की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, तो हमने कोई मुल्क तोड़ा नहीं है. और आज 75 साल के बाद हमारी एग्जिस्टेंस है, एक रियलिटी है. जिस तरह मुल्क दुनिया भर में बहुत सारे और मुल्क वजूद में आए हैं, इज़राइल वजूद में आया है. कोई इज़राइल के वजूद के ऊपर उस तरह उंगली नहीं उठाता जिस तरह अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ता है. सो आई फील वी नीड टू स्टैंड आवर ग्राउंड. येस, दे आर डार्क चैप्टर्स इन आवर हिस्ट्री, दे आर थिंग्स दैट वी डोंट टॉक अबाउट, बट वी एज अ कंट्री वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड देयर इज सो मच टू बी प्राउड ऑफ. आई एग्री. और इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं ना. एक तो ये हो गया कि ऑब्वियसली मीडिया रिक्वायर्स अ पुश ऑफ अ सर्टेन नैरेटिव, एंड दैट्स समथिंग अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए लास्ट 20-25 ईयर्स में एटलीस्ट. लेकिन देन देयर इज अनदर एलिमेंट जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है अबाउट लाइफ, व्हिच इज़ द हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द वंस हु वन, राइट? दैट्स इट. मिसाल अगर आपको देता हूँ, एज क्रेजी इज दिस साउंड्स, if the Nazis win, right, what is the world? I don't know, right? If XYZ happens, what is narrative kya hai? For example, Jesus Christ looked more like me than he does in the pictures, because he does look more like me, because he's a brown, as in from that ethnic group. उसी तरीके से if you go into history, right, we had someone on the podcast जो बात कर रहा था मोहनजोदारो किस तरह ख़त्म हुआ, तो वो कहता है यार गोरों ने तो ये हिस्ट्री बनाई थी कि यहाँ पे आर्यंस आए थे एंड दे किल्ड ऑल ऑफ यू एंड दे कॉन्कर्ड. अब हर स्टोरी के एंड में बिकॉज दे रूल्ड, दे कुड जस्ट पुट इन अ लिटिल फिगर हेड कि हम यहाँ पे भी इस टाइम पे भी 200 years ago ऐसे हुआ था. अब इज़ खिलजी द विलन और द हीरो? दैट्स फॉर द विनर्स टू डिसाइड ना. ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ लाइफ है, विच आई फील लाइक बाय द वे in a big way Europe is going through now, right? So Europe wrote hundreds of years of history which is being rewritten as we speak. This will continue to happen in the next few years because there's power shifts happening. If tomorrow China, Saudi, whoever world leaders might be, what we think of as the prime of the world is, the Romans came up with democracy, and they came up with science, and they came up, all the great stuff happened in Greece and in Rome and in वो Europe का एक हमने belt बनाया हुआ है. That could be completely flipped on its head and been like the Abbasids did this, and because you can make that argument. No, you're absolutely right. The dark ages of Europe was not the dark ages of humanity. That's exactly when the Muslim Empire was doing so well. There were tremendous progress being made in physics, maths, chemistry, biology. तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव होगा. कहने का मकसद ये है कि आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं, we have made our relationship with knowledge to be very transactional.
हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करना चाहते हैं जो हमें फ़ायदा दे रही है, और उस फ़ायदे को भी हम बड़े एक शॉर्ट टर्म मायोपिक व्यू में लेके चलते हैं. वी हैवंट गॉन इनटू दैट स्ट्रैटेजी. एक सिंपल सी बात है कि आज हमारे मुल्क में जो भी शख्स एक लीडरशिप पोजीशन पे है, इन अ लीडरशिप पोजीशन टू लीड द कंट्री और टू लीड द सोसाइटी, उसका अगर विजन नहीं है, जैसे एक चाइनीज़ मुहावरा है, यू स्पेंड टाइम इन चाइना, कि यू नो until and unless you're planting and growing trees that you have no ambition to sit under the shade of or to eat its fruit, you're not really doing service to it. और ये जो आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है, मुझे एक मोहम्मद अली का कोट बहुत पसंद है. उसने कहा था कि दिस कम्युनिटी सर्विस दैट यू डू इज़ द रेंट यू पे फॉर बीइंग इन दिस वर्ल्ड. यानी आप अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको भेजा है और आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी अपनी एम्बिशन फॉलो कर रहे हैं, उसका किराया या उसका एक तरह से आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि डू समथिंग फॉर कम्युनिटी एंड सोसाइटी. आई थिंक एक बड़ा मसला इस वक्त हमारे लिए ये भी है ना कि वी हैव बिकम टू इंडिविजुअलिस्टिक. वी आर नॉट थिंकिंग कम्युनिटी, वी आर नॉट थिंकिंग नेशन, वी आर नॉट थिंकिंग इवन ह्यूमैनिटी. हमें लगता है कि जो है आज इसको पालो. आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. वी वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ स्टडी कॉन्फ्रेंस, group of 13-14 people, everybody like जैसी सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद people started talking to each other कि अच्छा अब वीज़ा अप्लाई करना है, टिकट्स कौन सी बुक करनी है, यादा. उसमें 2-3 लोगों के रिजेक्शंस भी आए थे. अब जिनके रिजेक्शंस आए उनके लिए अलमनाई ने, सेक्रेटेरिएट ने, ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मेहनत की. उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको लग रहा है कि इनके पास वसाइल कम है, फाइनेंसेस उतने नहीं हैं, लेकिन वी आर पुटिंग एज एन गारंटी, लेट देम कम ऑन दिस वंडरफुल प्रोग्राम बिकॉज वी वांट दिस प्लेटफॉर्म टू बी इंक्लूसिव. Lo and behold, Shayan, it was a wonderful program. We were all on the plane back, different flights going back to different destinations. 3 of the people decided to slip and stay in Canada. I mean, not thinking of the guarantee of the word that has been put in, कि आपकी अपनी ethics क्या हैं, आपकी अपनी values क्या होनी चाहिए. You represented, like हम 15 साल की उम्र में, मैं first time I went for the English speaking unions competition. Our principal, our teachers, everybody drilled in the thought कि you are an ambassador of the country. आपसे पहली दफ़ा हो सकता है लोग मिल रहे हों जिनका कोई भी कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है. कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, सब अपनी दुनिया में मगन है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे है कहाँ. सो द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ is going to leave a lasting impression. Even that is true in this age of connection and internet and social media. And sometimes I wonder कि यार हम इतने selfish क्यों हो जाते हैं कि हम सिर्फ हम उस पूरी शनाख्त को, उस पूरी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे को देखते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली ना, अगर आप एक कॉमन पाकिस्तानी मैन या वुमन से बात करें एनीवेयर, they assume that the representation of Pakistan is through the leadership in politics, through the military. These are the representation. We are not. अब होता क्या है ना कि if for example you go to Europe or you go to the US, anyone who's had a bad experience with Pakistanis, he's not had a bad experience with, Shabazz Sharif, for example. He's had a bad experience with some guy. Common people. With a common person. With a carpenter or a plumber that he asked कि भाई मेरा ये काम कर दो और उसने डंडी मारी है या उसने काम पूरा नहीं करके दिया आपको. मैं लोगों को यही हमेशा कहता हूँ, जिस तरह इंग्लैंड में जब रहता था, मैं कहता था कि यार आप लोगों को लगता है ना कि पाकिस्तानीज़ का बुरा नाम है बिकॉज ऑफ पता नहीं हम करप्शन करते हैं. Nobody in their day to day life gives a crap कि आप करप्शन करते हो. They are like, यार मैं पाकिस्तानी को जानता था, उसको मैंने 200 पाउंड दिए काम देने के लिए, वो डंडी गिरा के भाग गया. I don't like Pakistanis because of a personal experience that happened to me. Exactly. ये लोग समझते नहीं है कि यार देखो, एम्बेसडर का मतलब ये है कि अगर आप ये करोगे ना 10, 15, 20 लोग, तो the 21st guy that comes around जो बेचारा is actually trying to just get by in life and actually make a positive impact for Pakistan, the other 20 are ruining it for him. And that is our biggest problem. That is such a fantastic thought. And it completely flips racism. यानी ठीक है, एक इनहेरेंट रेसिज्म भी होती है, बट इट इज़ आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली यू आर एडिंग टू दैट, टू दोज वॉल्स एंड टू दोज हर्डल्स जो हम एज अ नेशन फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि आपने कभी कोशिश की होगी कि अपने इंटाइटलमेंट में कि यार ये रूल मुझ पे लागू नहीं होता, या आई कैन गेट अवे विद दिस फिब, या आई कैन डू दिस लिटिल बिट ऑफ एन एम्बेजलमेंट, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं. लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो दुनिया का एक नेगेटिव इमेज है मुल्क के बारे में, कौम के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, उसको भी तो सीमेंट किया है ना. तो आप और हम भी उतने ही मुजरिम हुए. बिल्कुल. एंड जो लोग कहते हैं ना कि स्टेरियोटाइप्स, देखिए देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर. अगर लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी चालाक होते हैं, पाकिस्तानी से कुछ है उधर,
Do not tell me कि नहीं, this is a complete blanket statement that someone created sitting. You cannot create that mindset in the masses because the masses need to have experienced something like that. ना, this is a lot of. मैं एक और मिसाल तुम्हें सिंपल सी दूँ कि while we were there and there were so many subjects of truth and reconciliation coming up. जैसे आपको पता होगा 3 साल पहले a residential school was discovered in Canada जहाँ पे तकरीबन 250 बच्चों की इज्तिमाई कब्र मिली कि and it was for the first time it was being unearthed कि किस किस्म के मजालिम First Nations ने, Aboriginals ने और Native Americans ने सहे. जब ये सिर्फ बातें होती हैं, I could see that so many people in the audience, the international audience, were moving to tears. I didn't see anybody from South Asia crying. एक बात ये भी आप कह सकते हैं कि ठीक है यार, बिकॉज हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी कोई रिलेटिविटी नहीं उससे बनती है, एंड वी weren't moved enough. बट आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ चायान कि हम इतने ज़्यादा सख्त मिजाज हो चुके हैं, हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है कि हमें इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसका दर्द हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं. हमने एक वो पूरा 10-20 साल का, आई वॉज इन द न्यूज़ रूम्स जब हम सुनते थे कि यार हर जुम्मे को एक ब्लास्ट हो रहा है, एक अटैक हो रहा है, एंड वी हैड बिकम सो कैरलेस अबाउट इट कि हम पूछते थे अच्छा स्कोर क्या है, कितने लोग मरे हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं. So when you live a history like that and your heart has actually stopped feeling pain or feeling compassion, that is the reason we are facing what we are facing. हम इस बात पे बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हम दुनिया की one of the most philanthropist nations हैं, हम इतना donation देते हैं, इतनी charity देते हैं. Money is the least of things that you can do. Are you committing a life to knowledge? हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो शख्स होगा जिसने पैरासिटामोल दरियाफ्त की है so that he can help so many more people. वो वाले काम हमने नहीं करने. हमें लगता है कि अच्छा सही या गलत तरीके से पैसा कमा लो और उसके बाद पैसा अगर हमने एक स्कूल बनाने में डोनेट कर दिया या एक अस्पताल बनाने में डोनेट कर दिया तो हम बड़े अच्छे लोग हैं. आई थिंक वी नीड अ मेजर रिफ्लेक्शन ऑन द काइंड ऑफ पीपल वी आर, बिकॉज वही आपकी वाली बात कि जो 10-20 लोग अगर टॉप पे भी हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हों, हेड्स ऑफ सर्टन इंस्टीट्यूशंस हों, दे आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम सोसाइटी. वो कोई मरीख से तो नहीं आया ना, आपके और हमारे दरमियान इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं. बिल्कुल. एंड इट्स अ seismic problem that holistic. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टीवी पे लोग देखना चाहते हैं पॉलिटिशियंस को कि टीवी एंकर्स बजा रहे हैं. क्यों देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं ना. अगर हम नहीं देखना चाहते तो बिकॉज हम एक जाहिरियत पसंद कौम बनते जा रहे हैं. Exactly. Ratings are an amalgamation of public opinion. Yes. Right? And no business, anything that makes revenue will ever work or move towards something that doesn't make the money or doesn't have the viewership. Very true. So व्यूअरशिप हम रोते रहते हैं कि यार ये टीवी चैनल्स दिखाते क्या गार्बेज हैं, बट देन यू विल गो एंड फॉर एग्जांपल सी द एंटी टीवी व्हिच इज ट्विटर एंड द ट्विटर नाज़ीज, राइट, एंड दे आर आल्सो गोइंग टू हेट ऑन एंड दे आर गोइंग टू, मतलब मैं कभी बहुत कम ममालिक ऐसे होंगे हमारी तरह जहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज ट्रेंड करती है. हमारे यहाँ करती है बिकॉज वी लाइक डूइंग दैट, वी लाइक पुशिंग इट, और उसके साथ साथ हम इनफैक्ट वी वांट टू राइड द वेव एज वेल. आई ऑल्सो सी पीपल पुटिंग इन कंस्ट्रक्टिव पोस्ट और देयर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस विद द सेम अब्यूजिव हैशटैग बिकॉज वो ट्रेंड कर रहा है. सो आप सोचे तो सही ना, हम how are we acting as a nation or as people? And आपने social fabric की बात की थी, and I think that is one of the saddest parts of all of this, right? That ये तो समझ ही नहीं आता ना कि इसका क्या होगा, because social fabric वैसे दुनिया में भी to some extent is in trouble. हमारा तो बहुत ज़्यादा है, and then that's because एक तो there's a level of education that's an issue, illiteracy that's an issue, but then on top of that वही वाली बात आ जाती है ना कि what do we want to do? We don't want revolution, we don't want change. You know what we want? We want memes. I feel, पता है, I have been thinking about that, and because आपको जब 1 महीना मिल जाता है when you can sort of distance yourself, and it sounds, when I'm saying it sounds more like a first world problem, but nonetheless, when I got an opportunity, and God, thank you for that, and you think about what you can do, and I was again and again taken back to the same quote, Shayan, कि हम कहते हैं ना कि जब आप नाइव होते हैं, जब आप इमेच्योर होते हैं, तो आप दुनिया बदलना चाहते हैं. आप सर मारे होते हैं कि यार ये सिस्टम सही कर दूँ, यहाँ पे मैं जस्टिस ले आऊँ, यहाँ पे एक्विटी ले आऊँ, यहाँ पे इक्वालिटी ले आऊँ. More importantly, we need to correct ourselves. If I could, if anybody who's listening to this podcast and is going through the same kind of questions and reflections, उनको चाहिए कि यार अपने लिए कोई भी सिम, सही या गलत, कुछ करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, उसके बाद कुछ सीख लेंगे. But find yourself a goal and a purpose and just go for it. If you have to fail,
and you're a techie, so you would know, fail fast. And then you'll find something else. हमारे यहाँ मसला ये है, the procrastination has become a national hobby. हम सिर्फ बैठ के, everybody has become a तज्जियाकार or a senior तज्जियाकार, which is my biggest bane in life, by the way. Khair, आपने हमें बड़ा time दिया, firstly, so thank you for that. I'll just ask you one last question, which is, you said that, you know, the peak of your career was to come. Inshallah, that's true. What's been the highlight of your career so far? There have been several. I mean, when I look back at it, the journey so far has been very unplanned, but it has been very mindful. Like, मुझे लगता है कि I live from a day-to-day basis. I try to cultivate and manifest opportunities for myself, and they come. When people talk about, you know, getting things easily, हमेशा मैं एक ही बात उनको बोलती हूँ शायान कि things don't come easily, but they come with ease. इस काम में या जिस काम में भी आप हों, उसके लिए आपको एक जुनून चाहिए. सुबह 6 बजे उठ के या 5 बजे उठ के अपने आप को बेआराम करना will not get easy, but you'll be able to do it with ease if your heart is there. So for me, my highlights were the extensive travels, the kind of wonderful mentors and teachers I've met along the way, the identity I have created and carved for myself, and the flexibility in that. You know, जहाँ मुझे लगने लगता है ना कि मैं एक किसी डब्बे में या एक ख़ास थिंकिंग की तरह में बंद होती जा रही हूँ, I shake things up, and I'm very keen on continuing to learn. So you'll always find me either reading, investing in a program. कभी वो कोच ज़िंदगी में ना रखना जिसका कोई कोच ना हो, चाहे वो तुम्हारा फिटनेस ट्रेनर हो, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना रोक देगा, वो they will die. They will continue to live the same day for the next 35 years, but they will not have a life. So my message to everybody would be, have a life. Do something constructive with yourself. Chale, I think that's a interesting place to leave it. Thank you for being on the podcast. Pleasure. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.